Good morning, students. Students, today we will learn Moral, class 3rd, lesson number 4, lesson name False Judgment. Lesson name False Judgment. Students, in the beginning of this lesson, this is a nutshell. Anything that shines cannot be gold. Outer appearance is not enough to know the inner qualities of anyone. बच्चों, जो कुछ भी चमकता है वह सोना नहीं हो सकता। किसी के आंतरिक गुणों को जानने के लिए, उसके अंदर की क्वालिटीज़ को जानने के लिए बाहरी रूप ही काफ़ी नहीं होता। उसकी ऊपरी सौंदर्यता, उसकी ब्यूटी काफ़ी नहीं होती। Our clothes, jewelry, beauty are only for short period, but our nature, knowledge and abilities are everlasting qualities which cannot be ended by the passing of time. बच्चों, हमारे कपड़े, गहने और हमारी सुंदरता केवल थोड़े समय के लिए ही होती है, लेकिन हमारा स्वभाव, ज्ञान और योग्यताएं ये हमेशा के लिए होती हैं, जो समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए बच्चों, हमारा स्वभाव, दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, हमारा ज्ञान, ये सब अच्छा होना चाहिए। बाहरी सौंदर्यता कुछ नहीं होती, बाहरी खूबसूरती कुछ नहीं होती है। There was a sant in the village. He was well versed in all scriptures. He knew everything, but he was very poor. He did not have a house. He used to get his meals also with great difficulties. Even his clothes were very much worn out. बच्चों, एक गांव में एक संत रहते थे। वो संत सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो सभी शास्त्रों के ज्ञानी थे। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन वह बहुत गरीब थे। उनके पास घर नहीं था और उन्हें अपना भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। यहाँ तक कि उनके जो कपड़े थे वह भी बहुत खराब थे, फटे हुए थे। So the sant used to beg for his meals. He went from door to door and begged. On seeing his old clothes, many people were thinking that he was a lunatic. People said, "Go away," and they shut the door. For many days, he did not even get enough food to fill his belly. इसलिए बच्चों, संत अपने भोजन के लिए भीख मांगते थे और घर घर जाकर वह भीख मांगते थे। लेकिन उनके पुराने कपड़े देखकर कई लोग उन्हें पागल समझते थे और कहते थे, चले जाओ, और यह सब कहकर वह दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे। कई दिनों तक उन संत को पेट भरने के लिए खाना भी नहीं मिला। Once somehow he obtained new clothes. A rich merchant gave his old clothes to the sant. That old clothes were in good condition and was looking like new. बच्चों, एक बार किसी तरह से उन संत को नए कपड़े मिले। एक अमीर व्यापारी ने अपने पुराने कपड़े संत को दे दिए। वो पुराने कपड़े अच्छी कंडीशन में थे और नए जैसे लग रहे थे। Wearing those new clothes, he went to beg as he used to go before. To the very first house he went, the owner of the house said, "Sir, come in. Have your food in our house." Saying these words with great respect and regard, he took the sant inside the house for food. बच्चों, उन नए कपड़ों को पहनकर वह संत भीख मांगने चले गए। जब वह संत पहले घर में गए, तब उस घर के मालिक ने बहुत आदर और सम्मान के साथ कहा, "महोदय, अंदर आओ,
हमारे घर में अपना भोजन खाओ, मतलब महोदय आप हमारे घर पर अपना भोजन करें। और यह कहकर वह व्यक्ति संत को अपने साथ घर के अंदर ले गया। The son sat down to eat. Many kinds of delicious dishes, sweets, desserts were offered to him for eating. Having prayed first, the son sat down to eat. Many kinds of delicious dishes, sweets, desserts. The son sat down to eat. Many kinds of delicious dishes, sweets, desserts were offered to him for eating. Having prayed first, the son took a piece of sweets in his hand and started to feed his new clothes, saying, "Eat, eat." बच्चों, संत भोजन करने के लिए बैठ गए। जो व्यक्ति संत को अपने घर के अंदर ले गए थे भोजन कराने के लिए, संत वहाँ पर भोजन करने के लिए बैठ गए। संत के लिए खाने के लिए बहुत से तरह के स्वादिष्ट व्यंजन आए, मिठाइयाँ दी गईं। सबसे पहले संत ने प्रार्थना की। उसके बाद संत ने एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और अपने नए कपड़ों को खिलाने लगे। अपने नए कपड़ों से कहने लगे कि खाओ खाओ, मतलब कि वो अपने नए कपड़ों को मिठाई खिलाने लगे। On seeing that the owner of the house was very surprised and did not understand. So he asked, "The clothes cannot eat, right? Then why are you offering food to the clothes?" बच्चों, यह सब देखकर घर का मालिक बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। जो व्यक्ति संत को अपने घर में ले गए थे भोजन कराने के लिए, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि संत अपने कपड़ों को भोजन करा रहे हैं। यह सब देखकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उन्होंने संत से पूछा, क्या कपड़े खाना खा सकते हैं? सही बात, मतलब कपड़े खाना खा सकते हैं, तो आप क्यों इन कपड़ों को खाना खिला रहे हैं? Then the son answered, "Indeed, because of these new clothes, I am being offered food today. Yesterday, I was told to go away at every house in your area. Since I obtained not only respect but food also due to these clothes, I am very much grateful to them. That's why I am feeding them." बच्चों, संत ने उत्तर दिया कि वास्तव में इन नए कपड़ों के कारण मुझे आज भोजन दिया जा रहा है। कल मैं आपके क्षेत्र में हर घर में गया था, लेकिन आज मुझे इन कपड़ों के कारण सम्मान दिया जा रहा है, भोजन दिया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आभारी हूँ इनका, इसलिए मैं इन्हें खाना खिला रहा हूँ। Hearing these words from the son, the owner of the house felt ashamed on the inhumanity shown by the pupil against the son earlier. बच्चों, उस व्यक्ति को संत की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि लोगों ने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। जब उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तब लोगों ने उसे खाना भी नहीं दिया और भगा दिया। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अच्छे कपड़े पहने, तो लोगों ने उसे सम्मान देना शुरू कर दिया। तो बच्चों, हमें सामने वाले व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो किस तरह से हमारे साथ बात करता है, अच्छा आचरण करता है। और बच्चों, हमें किसी भी व्यक्ति के बाहरी रूप को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए कि ये कैसा होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि किसी भी बुक के कवर को देखकर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए,
कि इस बुक में कितना ज्ञान है, ये बुक हमें कितनी नॉलेज दे सकती है। उसी तरह से बच्चों, हमें किसी भी व्यक्ति की बाहरी सौंदर्यता, बाहरी खूबसूरती को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए कि इस व्यक्ति में कितने गुण हैं और ये कितना ज्ञानी है। नाउ स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।